Mughal built like Titan and embellished like jewelers. So here two specific portion which you have to write about. One is about how they built like Titan, so the architecture in general. Second is the overall decoration or embellished like jewelers comment. तो दो पार्ट में होना चाहिए, and that too you can divide it as per the requirement. So here the student has wrote about the Mughal architecture marks a high point in Indo-Islamic type of architecture. They did not fear to inculcate new indigenous motifs while carrying on their tradition. So if you see the reign of Babur and Humayun, so they were busy consolidating, and very few examples are there with respect to Humayun tomb, and that too was also constructed after his death. The major it starts from Akbar itself. So Akbar or Shah Jahan, ये दोनों सबसे ज़्यादा famous है for architecture, and Akbar itself has two phases largely. Early phase is like palace we see at Agra, Allahabad and Lahore. Later phase is depicted at Fatehpur Sikri. Jahangir not known for much, but Itimadud-Dawla's tomb was made during his reign, and Shah Jahan is the one who is known for the overall Indo-Islamic architecture. So here you have to write about main features, grandeur क्या था, material क्या था, ठीक है, secular buildings क्या थी, किस तरीके की, with respect to Sufi saints like Sheikh Salim Chisti's tomb was made. आर्ट अगर थोड़ी बहुत आती है तो ऐसे और अच्छे से बना सकते हो. स्पेसिफिक आप चाहो तो केस स्टडीज़ भी ले सकते हो कि ताजमहल का एक लिख के उसके ऊपर 4-5 चीज़ें लिख दी विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे एम्बेलिश, है ना, लाइक ज्वेलर्स. तो वो 5-6 पॉइंट स्पेसिफिक अगर लिखोगे, अदर देन दर बेसिक लेवल पिएट्रा डूरा और ये सब मिनारेट्स वगैरह, उससे नहीं काम चलता है उतना. ठीक है, चारबाग स्टाइल, एंट्रेंस, पिएट्रा डूरा, दो पार्ट में इसको डिवाइड करना था. यूज़ ऑफ इनिशियली दे वर यूजिंग द रेड सैंडस्टोन, लेटर ऑन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द वाइट मार्बल, तो वो वाला पार्ट भी वहाँ पे आना था. तो औरंगजेब रेन मार्ड डिक्लाइन एंड एम्पायर, द मोन्यूमेंट ऑफ मुगल हैव कंटिन्यू टू ऑस्ट्रक पीपल टू डेट. तो यहाँ चाहो तो बेसिक से उसके बारे में लिख सकते हो कि हाउ it is they built so many good monuments that one of them, that is Taj Mahal, is even considered the wonder of the world. तो वैसा भी कुछ चाहो तो कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो, because Taj Mahal is a complete blend of how they built like Titan and embellished like jewelers, because that is a jewel in the crown, just like India has to be jewel in the crown. That is the jewel in the crown of the Mughal Empire, and that is something which you can write here. Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I am here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं, एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, then you can join our institute. चलिए बात करते हैं. So the program will start from 23rd of July. If you see from last few years, okay, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. In 2018 I was able to get 324 marks, and with the period of time we have produced large number of toppers. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 as well as 22. Every year people are getting around 300 or more than 300 marks. उसके आसपास आ ही जाता है. In fact, the topper of 2023, she also got more than 300 marks. So it's a specific optional where you get good marks. प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. With respect to our classes, okay, if you see our methodology is a bit unique. What do we focus upon? First of all, we give some specific classes which are concept oriented, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगनिंग. तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे. Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional, and जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे, and side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे. आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में. कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है. इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स UPSC में भी आ जाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया. एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम
maximum marks in the interview. All those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस हो जाते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो जाते हैं क्लास के अंदर, एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल. क्यों? बिकॉज देखो कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे, तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. सो दैट हुएवर जॉइन्स दिस, उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. सो दिस इज़ अबाउट द क्वान्टिटेटिव. देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के. देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे. इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक. 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वॉज फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज. सो इफ वी स्टडी वेल, इफ वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड. एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल. मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, यू कैन गेट वेरी क्विक रिजल्ट. बट येस, यू हैव टू बी डेडिकेटेड फ्रॉम योर साइड. सो इफ़ यू आर समबडी विद एनर्जी, समबडी विद डेडिकेशन, बिकम ए पार्ट ऑफ दिस. 23 जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 मार्क्स हियर. You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट. Then analyze the land revenue system implemented by Akbar and evaluate its impact. Okay, so this is something where we have to talk about this land revenue system. So land revenue system, if we see, the first elements of assessment can be seen during the reign of Alauddin Khilji. Then a new system was built by Sher Shah, and finally by the time of Akbar this was perfected. So we have to see it in this regard. So Akbar formulated a sound land revenue system with the help of Todermal. So Todermal's name is mentioned, leading to agricultural prosperity and political stability. In fact, it is often said that the Mughal Empire it rested on 3 pillars, और उनमें से एक पिलर यही थे आपके पीजेंट्री. अगर पीजेंट्री सही था तो सब कुछ अच्छा चल रहा था. लैंड रेवेन्यू सिस्टम, they talk about the Haisala system, what are the specific officials like आमिल कैसे कलेक्ट करते थे, कैटेगरीज ऑफ लैंड, पॉलेज पारा तो छेचर बन जाए, चारों के बारे में बात किया हुआ है. ठीक है, परसेंटेज लैंड रेट, एग्रीकल्चर लोन्स का बात किया है, जबत मेजरमेंट कैसे होता था, इम्पैक्ट क्या, फिर रिड्यूस बर्डन ऑन द पीजेंट्री. सो इट वाज अ काइंड ऑफ फाइन बैलेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीजेंट्री. रिड्यूस करप्शन, एक्सप्लोटेशन, वेगरीज से बचा लेता, बिकॉज 10 years जो आपका बड़ा टाइम है उसमें 10 साल का एक तरीके से एवरेज निकल जाता है. तो द लेवल ऑफ टैक्सेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द लोअर साइड, बिकॉज एनी अनटूवर्ड इवेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एडजस्टेड विद इन दैट. better planning, keeping prices stable for many years, prosperity prevailed. So this is what it is. Okay, here if you wish to write, थोड़ा बहुत compare कर सकते हो शेरशाह के साथ में कि how शेरशाह built in the some of the system and they were taken to the next level by Akbar. So these are the kind of questions were relatively easy. Initial जो debate specific question थे वहाँ historian के viewpoint पता होने चाहिए. Factual, जैसे कि भी economic themes है, economic themes में factual part strong होना चाहिए. सिमिलरली फॉर आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, यहाँ पे आपका फैक्चुअल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए.
Hi, so welcome to Prep Career. Today I'm going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time, उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें. दिस इज वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. दिस इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड. तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि हम शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो. ठीक है, एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 मंथ्स, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. व्हाट शुड बी दी अप्रोच. तो अप्रोच बहुत सिंपल है. अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ, एंड देन ऑन डेली बेसिस यू विल राइट फ्यू आंसर्स. हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे. एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो, उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है. हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 डे. जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो. और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस. ठीक है, तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है. फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें. राइट, दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है. जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें. दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग. प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे. देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना. यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल. देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव. पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे. दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी. डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे. 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा. 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए. सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड. ऑलराइट, एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है. राइट, एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर. एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम हिस्टोरियन, बहुत बच्चों को हिस्टोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है. सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं. एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. अब देखो हमने क्या किया है कि रफली 21 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है. इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 22, 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग. बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं. तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए. वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए. बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए. देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4. तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा. तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है. और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स. ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर. तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे.
ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाए, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रिकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए। ओके उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself you'll be able to finish off this batch. All right, so all the very best, thank you so much। इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।